बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, आपको सियासी प्लेटफॉर्म पे लिए चलते हैं और देखते हैं कि सियासत की दुनिया में क्या हो रहा है। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि रेलवे के जो वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो 2.5 एकड़ पर मबनी यानी कि 20 कनाल पर उसी सोसाइटी में, पैरागन सोसाइटी में, जिसके हवाले से उन पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, नैब ने उनको तलब कर रखा है, उसी सोसाइटी में एक 2.5 एकड़ का घर बनाना चाह रहे हैं। उस घर बनाने के मामले में क्या मुश्किलात उन्हें दरपेश आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे, मगर फिलहाल चलते हैं सियासी प्लेटफॉर्म पे। आज आपका एंकर बाल कटवा के बिल्कुल इमरान हाशमी लग रहे हैं। एडे खुश ना हो इमरान हाशमी ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਜੀਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਟਕੀ ਨੇ ਚਾਹ ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੰਜੇ ਦਾਤੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇ ਬਾਉਸੀ ਦੀ ਵੇ ਬਾਂਦਰਾ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਚੁਟਕੀ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਪਾਕਟ ਸਾਈਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਫੁੜਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਬੇਵਕੂਫ ਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆ ਬੀਬੀ ਅਨਾਉਂਸਰ ਦੀ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਮ ਨਿਹਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇ ਖਾਜਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡਾ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਜਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੇਟਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਖੱਚਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬਾਊ ਸਦੀਕ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੱਝ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਵੇ ਖਾਜਾ ਆਪਣੀ ਬੂਥੀ ਵੇਖ ਲੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ, ਕੱਟੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਤੰਗ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਜਦ ਜ਼ਿਆ ਖਵਾਜਾ ਹਾਰਸ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਲੀਅਮ 10 ਮੰਗੀ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੀਰਾ, ਇਧਰ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆ ਵੇਖ ਨੀ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਠੁੱਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਲੱਤ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ, ਲੱਤ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਲ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ, ਤਬੀਅਤ ਕੌੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਧੇ ਨੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 100 ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਲੀ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹਰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਟ ਟਾਈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਘਰੋਂ ਤੇ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਕਬਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਵੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਕਪਤ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਨਪਤ ਰੋਲੀ ਪਈ ਏ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਮਰ ਜਾ, ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਬੈਠ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੁੱਲੀ ਆ। हाँ थानेदार साहब, है तो बेचारा कुली। ਉਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਖਾਜਾ, ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਨਾ, ਪਿੱਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ
ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਏ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ ਲੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਬੱਕਰੇ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਟਿਕਟ ਵਿਖਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਹ ਹੀਰੇ ਆਪ ਫਰਦੌਸ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਚੋਰੀ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੈਦੋ ਦੀ ਇਹ ਨਸਲੇ ਹਾਂ डोंट टच माय हस्बैंड ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣੇ ਚਲੋ ਪਰਾਂ ਪਰ ਆ ਕਿਤੇ ਹਟੋ ਟਿਕਟ ਵਿਖਾਓ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੱਲੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले में आपके लिए बहुत कुछ है आप देख रहे हैं सियासी थिएटर वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत हैं जरा दोबारा चलते हैं देखते हैं कि सियासी प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐ ਲਓ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਪੱਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ सही गल है शादी आप तो पींदे नहीं दोस्तों वास्ते थल्ले ड्राइवरां नु पुछण दे हुंदे ने यार वो तुम्हारे पास है वो इतनी सी होती है जो यार वो ब्लैक कलर की वो हाथ के साथ भी चिपक जाती है जिसको तीली पे लगा के नीचे से तीली नहीं लगाते जब वो गर्म होती तो उसको तंबाकू में मिक्स कर लेते यार जैसे वो ओबामा भी पीता था जिसको पी के दिमाग सुन्न हो जाता है आंखें भी रेड सी हो जाती है और आमद भी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है हाँ यार बहुत बुरी चीज है ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਓ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਭਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਆਂ ये क्या कर रहे हैं आप ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਮਾਲਖਾਨੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ शर्म आनी चाहिए आपको आप पुलिस वाले हैं आपका काम इस किस्म की जितनी भी गैर कानूनी चीजें हैं उसकी रोकथाम करना है ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਕੋ ਥਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੇ ਪਾਕਟ में हरदम एक काम का टुकड़ा ਓਏ ਬੱਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ऐसे बात करें मुझसे 4 लोगों में शौकीन हो जाते हैं आप ओवर इंसान आंखें नीचे पागल समझा मैं मुझे ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬੁਜ਼ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਜੇਬ 'ਚ 100-200 ਪਾਈਦਾ ਡਰ ਕੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਸਹੁਰੇ ਆਇਆ ਹੈ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ हद होती है शोखे होने की भी बस कर दे थानेदार साहब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਆਈ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ ਜੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਗਈ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਆਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਜੀ आई जी ਪਰਾਂ ਮਾਰ जब से शादी हुई है संग हर शख्स ने हाथों पे उठा रखा है नहीं इस शख्स ने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है मेरी जिंदगी भी अजाब कर देवे ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਣ ਡਈ जब से शादी हुई है एक
एक ही जुमला सुनी जा रही हूँ बार बार, अखा थले कर, अखा थले कर, अखा थले कर। शाह जी इन्ना विचारी थल्ले वेखदी ਏ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਖੋਚਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਲਾਕ ਨਾ ਲੈ ਲੈ। ਐਡਾ ਵੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰ ਓਏ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆ। अच्छा जी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं अफजाल तालिब साहब, उनकी ये खबर है कि जो पैरागॉन सिटी जिसके हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात का शिकार हैं अपना साद रफ़ीक साहब, उसी में वो 2.5 एकड़ का एक घर बनाना चाहते हैं, यानी कि 20 कनाल का, 20 कनाल रकबे पर मबनी वो घर बनाना चाहते हैं 2.5 एकड़ पर। ਇੰਨੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਦੀ ਜੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ 2.5 ਏਕੜ 'ਚ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 4-6, ਅੱਧੇ ਮਰਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਜ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। इसीलिए मैंने इस खबर को शामिल किया है। इससे कतई नज़र कि पैसा जायज़ है कि नाजायज़ है वो तो इदारों का काम है, और अगर किसी को अल्लाह ने दिया है और जायज़ पैसा है तो वो 200 एकड़ पे भी बनाए, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन अगर जायज़ पैसा भी हो तब भी एतराज़ होता है, और हमने बड़े बड़े रईसों को देखा है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो बिला मुबालगा हज़ार एकड़ पर भी घर बना सकते हैं, मगर इसलिए कि लोगों को फील ना हो। वो रहते एक ऐसी मुमलिकत में हैं जहाँ पर 6 करोड़ आदमी जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसको खुराक की कमी का शिकार है। 4 लाख बच्चा जो है वो 1 साल पूरा होने से पहले दम तोड़ जाता है। तो बड़े बड़े जो रईस हैं वो इसलिए बाज़-औक़ात लंबे चौड़े घर नहीं बनाते, बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा नुमाइश नहीं करते। जब आम आदमी उस घर से क्रॉस करेगा, लंबी चौड़ी 4 दीवारियों को देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी। और जैसा कि चार्ली साहब ने कहा कि एक तरफ तो ये हाल है कि एक कमरे में 6-6, 8-8, 10-10, 15-15 लोग बाज़-औक़ात जो है वो इस मुल्क में रह रहे हैं, दूसरी तरफ कनालों के घर हैं। अच्छा, ये खास रवैया है, और जो मैं अक्सर कहता हूं ना कि रवैये अच्छे हों या बुरे हों, ये कंटेजियस होते हैं, खास तौर पे बुरे रवैये। आप अंदाजा करें कि जब उनका लीडर जो है वो हज़ारहा एकड़ के फार्म हाउस में अगर रहना पसंद करेगा, हज़ारहा एकड़ का, जाती उमरा जो है कहते हैं हमारा जो इकबाल टाउन है तकरीबन इकबाल टाउन जितना साइज है जाती उमरे का। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। जी हाँ, मुझे देखिए ना इस पे वही वो शेर याद आता है शकीब का, मैं अक्सर शेर भी करता हूँ कि ढोलक की थाप को जरा आहिस्ता कीजिए, ढोलक की थाप को जरा आहिस्ता कीजिए, रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे पड़ोस में। ये नहीं शकीब ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम उसको अपना एंजॉयमेंट ना करो, या जो जिंदगी का लुत्फ लेना है वो ना लो। वो कहते हैं अपने अपने घर की 4 दीवारी तक उसको महदूद रख लो। और पूरा आप इस्लामी फलसफा अगर आप देखें तो वो भी यही है कि आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो मगर एक सादा जिंदगी जो है वो गुजारना चाहिए। लाजिम बात है एक ऐसे मुल्क में जहां देखे ना करोड़ों लोग जो हैं वो भूख की, खुराक की कमी का शिकार है। अगर आप एकड़ों पे घर बनाएंगे और आप ये दावा करेंगे कि आप उनके लीडर हैं तो उन लोगों पर क्या बीतेगी। कोई साहिल को मिलने वाला अगर आपके घर में आएगा और अगर आपके घर में एंटर होने के बाद आपसे मुलाकात के कमरे तक जाने के लिए उसको 10 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी, तो जरा तसव्वुर करें कि उसकी जो इज्जत नफ्स है उसके ऊपर क्या बीतेगी। फिर मुझे सच्ची बात यह है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हवाले से हमेशा से एक हुस्न ज़न रहा है और अब भी है, इसलिए कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने मुशर्रफ दौर में बहुत तकलीफ़ें सही हैं। और हम लोग, मैं उस वक्त जब लिखता था या टीवी पर तो मैं कम उस वक्त शोज़ करता था, लेकिन लिखा करता था, तो ख्वाजा साहब के हक़ में जो लिख सकते थे दीगर दोस्तों ने भी लिखा, उनके साथ हमेशा खड़े रहे और मुशर्रफ दौर में बहुत ज़्यादतियाँ हुई उनके साथ। फिर ये कि ख्वाजा साहब जिस शख्स की औलाद हैं, उनके वालिद साहब जो हैं वो एक बहुत ही फ़कीर मनश आदमी थे, एक सादा इंसान थे। उनके भाई को भी अगर आप देखें सलमान रफ़ीक को, तो आपको एक फ़कीर मनश, एक सूफ़ी का तासुर जो है वो उनसे उभरता है। तो ख्वाजा साहब से, ख्वाजा साद रफ़ीक से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जीना मरना जो है वो आम लोगों के साथ होना चाहिए। ख्वाजा साहब को ये सोचना चाहिए कि उनकी ताकत जो है और उनकी जो इज्जत है वो आम लोगों जैसा होने में है, आम लोगों से अपने आप को अलग करने में नहीं है कि दुनिया जो है, आपका जो वोटर है पाकिस्तानी जो है, चूंकि ख्वाजा साहब बहुत सेंसिटिव आदमी हैं, स्टूडेंट लीडर रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। कोई दूसरा शख्स अगर हजारों कनाल का भी घर बनाएगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ मुझे इसकी भी नहीं है, मगर हम ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास होगा भी
तब भी वो आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे। हम ख्वाजा साद रफीक को ऐसे देखना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि उनमें आम आदमी के साथ जीने मरने का तमाम तर पोटेंशियल है, इसलिए मैंने इस खबर पर बात की है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਵੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਮੁੜ ਕੇ ਚੋਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਵਾਂ? Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहां से टूटा था। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਤੀ ਉਮਰੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਏ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਬੈਠੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਕਿ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। अच्छा देखिए, मैं एक बार फिर कहूंगा, ये राइट है किसी का कि अगर उसके पास पैसा है और कोई बिजनेसमैन है और अगर जायज़ पैसा है, टैक्स दिया है, जायज़ सोर्सेज से कमाया, तो जितना मर्जी बड़ा घर बनाए। लेकिन जो हुक्मरान है, अगर वो हुक्मरान होने का दावा करता है, अगर वो लीडर होने का दावा करता है, तो फिर भाई उसे सूट नहीं करता है। फिर पूरी दुनिया में आप देखिए जो बड़े लीडरान हैं वो अपने लोगों के साथ जीना मरना पसंद करते हैं। तो अगर आपको महंगी गाड़ियों का, बड़े घरों का शौक है तो जाइए आम बिजनेसमैन वाली जिंदगी गुजारिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, टैक्स दे, जो मर्जी करें। लेकिन अगर आप लीडर होंगे तो फिर लीडर वैसा होने की कोशिश करे, वैसा बनने की कोशिश करे, या मेरा लीडर वो होगा जो मेरे करोड़ों लोगों की जिंदगी की, उनकी रहतल की, उनका जो मुआशी स्टेटस है, उस मुआशी स्टेटस की नुमाइंदगी करता हो। जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि मैं अपनी तनख्वाह उतनी रखूंगा जितनी एक आम मजदूर की तनख्वाह है। तो लीडर वो है कि अगर बिजली नहीं है तो वो कहे कि मैं भी फिर बिजली के बगैर रहूंगा। आपका लीडर वो है जो ये कहे कि जहां करोड़ों पाकिस्तानियों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, मेरा बच्चा भी फिर वहीं पढ़ेगा। और फिर वही बात है कि जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़े में थी कि अगर गुजारा नहीं होता, अगर इलाज नहीं हो रहा तो उसको बेहतर करें, अगर स्कूलों का निज़ाम ठीक नहीं है तो उसको बेहतर करें। मगर ये कोई तरीका नहीं है कि आम आदमी की औरतें जो हैं वो अस्पतालों की राहदारियों में बच्चे जन रही हों और आपके इलाज जो हैं वो लंदन में हो रहे हों। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बच्चे पैदा होते ही उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भिजवा दें और आम आदमी का बच्चा तपते हुए फर्श पर उस जगह तालीम हासिल कर रहा हो जहां उसके पहलू में भैंस बंधी हो। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੌਕਰ ਰਲਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਉੱਚ ਪਾਦਾ ਤਖਤੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। लीडर वो नहीं होता कि करोड़ों लोगों को इस मुल्क में एक कमरे की छत नसीब ना हो और वो हजारों एकड़ पे घर बनाए, चाहे वो साद रफीक हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो। जब तक कौम ये बात नहीं समझेगी कि लीडर उन जैसा होना चाहिए जो उनकी तरह की जिंदगी गुजारता हो, उनकी तरह की जिंदगी गुजारना पसंद करता हो, जो तकलीफें पाकिस्तानी झेल रहे हैं वो तकलीफें झेलने के लिए तैयार हो, या तो उन तकलीफों से निजात दिलाए या वही तकलीफ बर्दाश्त करे जो आम पाकिस्तानी बर्दाश्त कर रहा है। जब तक लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी और ये उमरा के पीछे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के पीछे, बड़े बड़े फार्म हाउसेस वालों के पीछे फिरते रहेंगे, तब तक ऐसे ही जूते पड़ते रहेंगे, ऐसे ही सियासी लीडरान अवाम को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे जिस तरह से करते चले आ रहे हैं 70 साल से। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਆ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਵਾਈ, ਵੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲਵਾ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨਗੇ। अच्छा देखिए, बात थोड़ी लंबी हो गई है मगर बड़ी अहम बात है। मैं जब ये हुक्मरानों के अलल्ले तलल्ले देखता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है मुझे। अगेन, अगर आपको शौक है तो आम आदमी की जिंदगी गुजारें, जो मर्जी करें, आपको कोई नहीं पूछेगा। अगेन, टैक्स दें और जायज दौलत हो। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं लीडर हूं और लीडर है तो फिर मेरी तरह जिंदगी गुजारना, फिर ये मुझे क्यों दिखाते हो तुम? ये घड़ियां, ये महंगी महंगी गाड़ियां, ये बड़े बड़े घर मुझे क्यों मरूब करना चाहते हो तुम? ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਸਤੇ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਆਟਾ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਰੇ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। अच्छा देखिए, मैं यही आपसे बात करना चाह रहा था कि सिर्फ जो हमारी मुकद्दस हस्तियां थीं और जो पैगंबर जो हमारे थे, उसके बाद भी ये लोग कहते हैं ना, एक और इन्होंने एक बड़ा लोगों को एक मिसगाइड किया है हमारी सोसाइटी में
ये कहते हैं जी हम उन जैसे नहीं हो सकते। यार नाउज बिल्ला तौबा, कौन तसव्वुर कर सकता है, कौन ये दावा कर सकता है कि नाउज बिल्ला तौबा हम उन हस्तियों जैसे हो सकते हैं? या कोई भी शख्स उनके बाद, सहाबा कराम के बाद, तबा ताबीन के बाद कोई भी शख्स जो है वो उन जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। उन हस्तियों जैसा कौन अहमक ये कह सकता है कि कोई उन हस्तियों जैसा हो सकता है? उन मुकद्दस हस्तियों की तो हम खाके पा भी नहीं हो सकते, उनके कदमों की धूल भी नहीं हो सकते। मगर इसका यह मतलब है कि उन्होंने जो मैसेज दिया है उसके ऊपर चलना भी छोड़ दें। अगर मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सादा जिंदगी गुजारी है और आप खजूर की चटाई पर जब आराम फरमाया करते थे तो खजूर की चटाई के जो निशान थे वो आपके जिस्म अतर पर पड़ जाते थे, तो मैं अगर ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मगर इस सादगी की अप्रोच को तो मैं अपने सामने रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? इन्होंने ये बयानिया एस्टेब्लिश किया कि वैसा तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जो मर्जी करते फिरो, करप्शन करते फिरो, चूंकि हम तो उन जैसे हो नहीं सकते, झूठ बोलते फिरो चूंकि हम तो उन जैसा सच नहीं बोल सकते, फ्रॉड करो चूंकि हम उन जैसी ईमानदारी की जिंदगी नहीं गुजार सकते। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कोई नहीं हो सकता। मगर जो उनके सिखलाए हुए अमाल हैं, जो उनका किरदार है, उसको फॉलो करना हमारा फर्ज है कि नहीं है? और जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ना। थोड़ा सा तो उस रास्ते को, उस सफर को तय करने की कोशिश करेंगे। अगर ये भी नहीं करेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे अपने आका को आखिरत में? ये सोचा है कभी हमने? तो आप देखिए कि आम आदमी जो है वो उस पर अमल करने की कोशिश करता है। मुझे याद आया, फैज साहब ने एक जगह लिखा, उन्होंने लिखा कि एक मरतबा मैं इस किस्म का वाकया है कि मैं एक मरतबा मखमल पहनकर, मखमल आपको पता है कि ज़रा उमरा की एक शान है और नुमाया एक लिबास होता है, तो मैं अपने मकतब में चला गया तो मेरे उस्ताद ने मुझे अपने दूसरे जो स्टूडेंट्स थे उनसे हट के तो गालिबन थोड़ी सी ऊंची जगह, नुमाया जगह बिठा दिया। फैज़ लिखते हैं कि मैंने उस दिन तय किया था कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मुझे आम आदमी से अलग कर दे, और हमारे हुक्मरान हर वो काम करते हैं जो इन्हें आम आदमी से अलग कर दे। सही कह रहे हो जी। इस लिए तो इमरान खान साहब कहते ने, इमरान खान ना आ गया अखा थले कर, बल्कि घुंडी कढ़ ला। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਵਾਂ, ਆ ਮਸਕੀਨ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਪੂਛਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਲੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਡਾਉਨ ਦਾ ਮਤੈਤ ਤੇ ਐਡਾ ਗੈਰਤ ਨਾ ਖਾ। ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਭੁੱਖੀ ਨੰਗੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਗਈ। बात यह है यार कि भूखी नंगी आवाम हो या ये मेरी बरादरी हो, मेरा तो ये फ़ख्र है। और मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि मरने के बाद जब मैं क़यामत वाले दिन उठाया जाऊँ तो मैं अपनी इसी आवाम के साथ, इसी गरीब आवाम के साथ, और यही जो मेरी बरादरी है इनके साथ उठाया जाऊं। भाई उमरा का और हुक्मरानों का तो हिसाब ही बड़ा कठिन होगा, इनके साथ होगा तो हो सकता है हम भी आराम से निकल जाएं, इसलिए कि मेरा ईमान है कि मेरा रब भी जो है वो मजलूम के साथ, गरीब के साथ प्यार करता है। ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? इसी को कहते हैं ढील देना। ढील देता है वो, जहां तक चाहता है वो कायनात का मालिक है, जब तक चाहता है, जहां तक चाहता है ढील देता है, आजमाता है, और जब चाहता है रस्सी खींच देता है। भाई क्या पहुंचे हुए बुजुर्ग लगे इस वक्त। अगर एक कदर तावीज मिल जाए ना मुझे तो मेरा काम बन जाए। इसका तावीज़ अक्सर मैं सोए हुए डर जाता हूँ। क्यों? अक्सर मुझे लगता है कि ये बख्तरबंद गाड़ी, ये डबल डेकर मेरे सीने पर पांव रख के खड़ी है। अच्छा। और कह रही होती है अबे ओ उठ शायर, अब दिखा अपनी शायरी। उस वक्त कहां से आए शायरी? जब मैं चीख मार के बाहर की तरफ भागता हूँ तो आगे से ये कह रही होती है ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀਂਵੇ ਵੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀਂਵੇ। हनीमून दे बहाने पहाड़ी ते ले जाके, वाह। हनीमून दे बहाने पहाड़ी ते ले जाके एनू ते तक्का देंगे। ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀਂਵੇ। एक मरतबा 50 लोगों की मदद से मैंने इसे धक्का दिया। ये पहाड़ी से लुढ़कते हुए भी कह रही थी आंदा जांदा रही वे। ये फिर बच गई। इसके नीचे आके 70 बंदरों का इंतकाल पुरमलाल हो गया। अब उसी पहाड़ी पर सारी बंदरियां अपने घाघरे उठा उठा के इसको बदवाएं देती हैं और साथ कहती हैं ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀਂਵੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰਨ ਸੈਮੀ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਜੇ,
ਇਹ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। अच्छा ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ क्या आंधा जांदा रहेंगे। अबे किरमिची इंसान, बे तूने खूब जज किया। ये नजम सेठी साहब की चिड़िया है, अब मोटी हो गई है। ताजा सियासी कलाम लेकर हाजिर हुई हूँ। जी जी इरशाद। देखिए अभी लफ्जों के आंसू बह रहे हैं, बिल्कुल ताजा कलाम है, सुनाइए। खरबूजा ते आ गया नैब दी छुरी थल्ले। हाँ, सुन सुन तरबूज, खरबूजे का जिक्र हो रहा है। खरबूजा आ गया नैब की छुरी थले, जैसे हम खरबूजे को घेर घार के छुरी के नीचे लाए हैं ना, बस वही जानता है। इस निगोड़ मारे की दाद मुझे कलाम बुलाती है। जिस मुशायरे में हम तुमको दाद नहीं देते वहां फीकी भी तो हो जाती हो ना। जाओ, हम नहीं देंगे तुम्हें दाद। जो हमें दाद ना दे अल्लाह करे उसे लिफाफा ना मिले। अब तो देनी पड़ेगी दाद। अर्ज कर रही थी, अर्ज किया है खरबूजा ते आ गया नैब दी छुरी थले। खरबूजा ते आ गया नैब दी छुरी थले, तरस खाना हुण बियां ते, एक ही गल हुई सारियां खिजा मियां ते। ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੇ? ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੈਨ ਨਵਾਜ਼। अगला शेर अर्ज किया है जी जी छोटे मियां दा फोकस मेट्रो। छोटे मियां दा फोकस मेट्रो, खान साहब दा शादियां ते, एक ही गल हुई सारियां खिजा मियां ते। आरावर्स लोग इधर उधर से पूछ रहे हैं कि मियां साहब के दिल में क्या चल रही है। क्या चल रही है ये मैं बताता हूँ कि मियां साहब के दिल में क्या चल रही है। सबके दिलों का पता है, इसे ये नहीं पता कि इसकी अपनी बेगम के दिल में क्या चल रही है। उसको पता उसमें रिक्शा चल रही है। इसीलिए ते रिक्शे वाली कहंदी है आंदा जांदा रही वे। इस रिक्शे दियां किश्तां खुद ही दही वे। मैं फिर भी यही कहूंगी आंदा जांदा रही वे। ओफो, मैं तो खवातीन के जुर्मट में भूल ही गया। मैं आपको बता रहा था कि मियां साहब के दिल में क्या चल रही है। क्या चल रही है जी? एक मिनट में हुक्म की तामील हो जाती थी। एक मिनट में हुक्म की तामील हो जाती है। एक मिनट में हुक्म की तामील हो जाती थी। आमिर ही ठीक था जिससे डील हो जाती थी। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। ਓਏ ਆਗਰਾ ਚ ਘੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। तो यहाँ भी घड़े ही बेच रहे हैं, यहाँ कौन सी फ्लोर मिलने चल रही है इसकी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਨਆਰਓ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। इख्तितामी कलाम की तरफ बढ़ते हुए आखिरी शेर सुना रही हूँ। जी। पावे मंगा दे पेंसिल, ਆਹਾ पावे मंगा दे पेंसिल ते पावे मंगा दे पेन वे। पावे मंगा दे पेंसिल ते पावे मंगा दे पेन पेन वे, वे। खुल के रहेगा वॉल्यूम 10 वे, खुल के रहेगा वॉल्यूम 10 वे। क्या बात है, वाह रे वाह। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन ग्रामी, पिछले हफ्ते हमारा जो शो चला जिसमें हमने ब्रुनाई की कहावतें डिस्कस की थी, बावजूद ब्रुनाई तो डिस्कस हो गया था, ब्रुनाई दारुस्सलाम, मगर ब्रुनाई की कहावतें जो हैं वो ख़ासतौर पे जो हमारे प्राइम टाइम के नाज़रीन हैं वो नहीं देख पाए थे क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी। तो इससे पहले हमने बात की थी ब्रुनाई के मौसम पे, हमने खेल डिस्कस किए, हमने वहाँ के लोग डिस्कस किए, करेंसी डिस्कस की, जो निज़ाम है वहाँ वो डिस्कस किया। जो मौसम है वो ट्रॉपिकल है ब्रुनाई का, और चूंकि 162 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है तो बहुत ही खूबसूरत समंदर जो है, दुनिया के जो खूबसूरत समंदर हैं आप समझिए उनमें से एक बहुत ही, यानी कि जैसे कहिए कि आउटस्टैंडिंग तो खैर नहीं है, लेकिन बहरहाल खूबसूरत समंदर जो है वो ब्रुनाई का तस्वुर होता है। फिर देखिए ब्रुनाई उन ममालिक में से एक है जिसका साइज़ तो छोटा है, यानी कि आबादी का भी साइज़ छोटा है, मुल्क भी छोटा है, मगर अपने साइज़ के हवाले से जो कि पर कैपिटा इनकम बहुत है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लिहाजा इन्होंने अपने मुल्क को बहुत ही मेंटेन रखा हुआ है। आप अंदाजा कीजिए कि जो 4.5 लाख की आबादी का मुल्क है ब्रुनाई, ये दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में शुमार होता है, यानी कि तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनमें शुमार होता है। तो लाजिम बात है कि एक तो कुदरती हुस्न होता है, हर इलाके का एक अपना हुस्न होता है, ऊपर से अगर उसको आप उसकी तराश खराज करें, उसकी हिफाजत करें, जैसे दुनिया अब अपने जो कुदरती वसाइल हैं, जो अपने कुदरती मनाजिर हैं, जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दे रखा है उनकी हिफाजत करती है अगर आप करें तो फिर वो जन्नत नज़ीर बन जाते हैं वो ममालिक। तो ब्रुनाई भी एक ऐसा मुल्क है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा जी, अब आते हैं कहावतों की तरफ।
जैसे कि हमने बताया कि एक तरफ इसके समंदर है, 162 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, और बाकी अतराफ में जो मलेशियन स्टेट है सरावक या सरावाक जो है उसने इसे घेरे में ले रखा है। तो समंदर जो है वो इनकी जिंदगियों में, इनकी रहतल में शामिल है। तो इनके मुहावरों में भी, इनकी ज़रबुल अमसाल में भी, इनके तजुर्बे में भी, इनकी दानिश में भी समंदर जो है वो बोलता हुआ नजर आता है। समंदर से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि मैदानी इलाकों के जो लोग होंगे उनकी कहावतों में भी आपको जो मैदानी इलाके का रंग जो है, फ्लेवर जो है नजर आएगा। सहराई जो इलाके होंगे, सहराई जो लोग होंगे, उसमें आपको उनकी कहावतों में भी, उसकी दानिश में भी सहरा से जो तजुर्बा फूटता है वो नजर आएगा। तो यहां पर समंदर जो है उससे बहुत कुछ इन्होंने सीखा है। हाँ जी, एक बंदा समंदर से डिग पिया, 6 महीने बाद बाहर निकलिया, कहता मैं कुछ सीखण गया। ਨਲਾਇਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। बगैर कच्छे तो तैरन डया। अच्छा जी, don't think there are no crocodiles because the water is calm. Don't think there are no crocodiles because the water is calm. ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੂਸਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਲਟ ਗਈ ਸੀ। सरदार साहब, 2 कश्तियां 'ਚ पैर रखण वाला मरे भावें ना, ਜਦੋਂ कश्तियां इधर उधर जांदियां पजामा पाड़ जांदा है। ओहो सरदार साहब, आप अपना खुद मजाक उड़वाते हैं। इस कहावत का मतलब ये नहीं है। Really? कहावत ये है कि डोंट थिंक देयर आर नो क्रोकोडाइल्स बिकॉज द वाटर इज काम। जी हाँ, आप इसका तर्जुमा यूं कर सकते हैं कि इस गलत फहमी में मत रहो कि अगर पानी, समंदर का पानी, झील का पानी, दरिया का पानी, अगर पानी पुरसुकून भी है तो इस गलत फहमी में मत रहो कि उसमें क्रोकोडाइल्स नहीं होंगे, उसमें मगरमच्छ नहीं होंगे। डोंट थिंक देयर आर नो क्रोकोडाइल्स बिकॉज द वाटर इज काम। अगर पानी पुरसुकून भी है तो इस गलत फहमी में मत रहो कि उसमें मगरमच्छ नहीं होगा। हाँ जी, हो सकता हो अंदर बेचारा सुता हो। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ। WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। अच्छा, मुझे मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 10 ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। सही गल, मुशायरे 10 पढ़ते ने, रुपया 5000 हुंदा। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है इस वक्त, तो शेख सादी की एक हिकायत है, गालिबन इससे मिलती जुलती है कि डोंट थिंक देयर आर नो क्रोकोडाइल्स बिकॉज द वाटर इज काम। कि इस गलतफहमी में मत रहना अगर तुम्हें पानी पुरसुकून लगे कि उसमें मगरमच्छ नहीं होंगे। तो गालिबन सादी की हिकायत है और उसका मफहूम यह है कि अगर जंगल खामोश हो, जंगल की खामोशी से यह मत समझ लेना कि आफियत है, हो सकता है कि उसमें कोई खूंखार भेड़िया जो है वो सो रहा हो। तो बिल्कुल मिलती जुलती, आप देखें दोनों जो बातें हैं, दानिश की बातें, वो मिलती जुलती हैं। अपना अपना तजुर्बा बयान किया है। एक तरफ जंगल का तजुर्बा है और एक तरफ समंदर का तजुर्बा जो है वो सामने आता है। शाहजी, मॉरल इसका यही है कि मोहतात रहा जाए जिंदगी में। जी हाँ, हिकायत का भी मतलब यही निकलता है और कहावत से भी यही सबक जो है वो हमें मिलता है। बिल्कुल सही गल है शाह जी। एक बारी मेरा चाचा जंगल च वड़ गया, कहंदा बड़ा पुरसकून जंगल है, चलो इत्थे अज पिकनिक ही मनाउने। इंज चादर विछा के रोटी पानी रख के चाचा बैठा है, पिछो चीता उठ गया। बस फिर चाचे ने की, चीते ने पिकनिक मनाई। परसों दी चाची दे घर चीता इन्हां दे बर्तन वापस करने आया सी। चीता मासूम जिहा मूंह बना के कह रहा, चाची माफ कर दी, 2 प्लेटां घट ने। और अगो चाची कहन लगी, प्लेटा ते मिट्टी पा, मैनू ओदा मोबाइल दे, मैं कॉल हिस्ट्री ते चेक करा। चीता इंज खलो गया जी, कहता चाची मेरी तलाशी ले ला, तेरे खामद दा फोन मेरे को नहीं है। शाह जी, चीता इंज खलो गया जिवें मुशर्रफ दौर दे विच नवाज शरीफ खलो गया सी। नाज़रीन, ये